ਹੈਲੋ एवरीवन। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਕੈਪਲਰਸ ਲਾਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪਲਰਸ ਲਾਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਂਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਕਾਨ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ MCQ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ ਦੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਲ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ R ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਰਕਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਬਟ ਵਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਨੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਰਕਲ ਇੱਕ ਲੋਕਸ ਆ। ਲੋਕਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕਿਹਦਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਇੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਫਿਕਸ ਦੂਰੀ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬਾਇੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਲ ਉਹ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰਹੂਗਾ। ਜੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਮੇਰਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰਹੂਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ 'ਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਨੀਚੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅੰਡਾਕਾਰ ਸ਼ੇਪ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਲਿਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਐਕਸਿਸ ਆ, ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਟੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਰਟੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ B ਨਾਲ, ਇੱਥੇ O ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ B ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ B ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਮੀ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ, B ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸੈਮੀ ਮੇਜਰ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਸੈਮੀ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ, ਮਾਈਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਵਾਲਾ ਐਕਸਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਵੱਡਾ ਵਾਲਾ ਐਕਸਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, A, ਸੈਮੀ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, 2A। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਐਲਿਪਸ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ F1 ਫੋਕਸ ਅਤੇ F2 ਫੋਕਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਈ ਇੰਟੂ AB। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਪਲਰਸ ਲਾਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੈਪਲਰਸ ਨੇ ਜੋ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵੀ ਪਲੈਨਟ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂਵ ਮਤਲਬ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਤਾ, P ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀਓ ਕੈਪਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਲੈਨਟ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੂਗਾ, ਐਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪਲਰ ਦਾ ਫਸਟ ਲਾ ਹੀ ਇਹੀ ਆ। ਫਸਟ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ, ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਿਪਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਫੋਕਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ F1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਪਲੈਨਟ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ, ਪਲੈਨਟ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਕੈਪਲਰਸ ਦਾ ਫਸਟ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ,
every planet revolves in elliptical orbit ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ if sun is taken at one focus, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ F1 ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ F2 ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। at one of the foci of ellipse, ठीक है। जो ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਕਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ सन ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੋ ਪਲੈਨਟ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਇਲਿਪਟੀਕਲ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਤੀ ਸਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ E ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਐਕਸੈਂਟਰੀਸਿਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਦੀ ਰੂਟ 1 + 2EL ਸਕੁਏਅਰ ਬਾਏ μ k ਸਕੁਏਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਐਕਸੈਂਟਰੀਸਿਟੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਤੇ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਡ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ, ਬਾਉਂਡਡ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਉਂਡਡ ਹੋਣ, ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਚਾਹੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇਲਿਪਟੀਕਲ ਪਾਥ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ? ਬਾਉਂਡਡ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬਾਉਂਡਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਉਂਡਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ठीक है, वो की होंगी है? लैस दैन 0, हमेशा नैगेटिव होंगी है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, असी इत्थे एनर्जी नैगेटिव पुट करांगे तो आ सारा एक्सप्रैशन बाकी है जो पॉजिटिव आ, तो 1 दे विचों कुछ नैगेटिव मतलब कि माइनस हो रहा, ठीक है। जो कुल मिला के दा रिजल्ट आऊ साडा, वो लैस दैन 1 आएगा, ठीक है। E लैस दैन 1 साड़ी एसेंट्रीसिटी आई है जी ये सिस्टम के लिए, ठीक है। तो फिर देखो स्टूडेंट्स, जो E लैस दैन 1 आ गई, E लैस दैन 1 काहदे लई हुंदी आ? फॉर इलिप्स, ठीक है। स्टूडेंट्स, तुहानूं मैं होर दस दियां इहदे विच ऐड करदा होया भी E इज इक्वल टू 1 फॉर पैराबोला, ठीक है। E is greater than 1 किहदे लई है? फॉर हाइपरबोला। E is equal to 0 फॉर काहदे लई? सर्कल दे लई। ਇਹਦੇ ਤੇ क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखो हुण इन्हां नूं ट्रिक दसदा मैं तुहानूं किदां याद रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। इत्थों देखो LES लैस, ठीक है, नाम तो ही असी चकना। जो एलिप्स की गल आई, असी LES लैस मतलब कि सेंट्रीसिटी साडी लैस हुंदी है, ठीक है। देखो फिर इत्थे पैराबोला की गल आ गई। जो तुहानूं पैराबोला कहा, पैराबोला BRA तो बराबर, BRABER बराबर, ठीक है, मतलब कि बराबर पंजाबी का वर्ड मतलब इक्वल, ठीक है। इक्वल मतलब E इज इक्वल टू 1, हमेशा इधर तो 1 की गल होएगी, ठीक है। तो देखो उहियो है, असी नाम तो ही साडे जो नाम आया असी उदों तो ही ड्राइव कर लेना, फिर सानू कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहोगी, ठीक है। हुण देखो स्टूडेंट्स, E इज ग्रेटर दैन 1 हाइपरबोला लई, मतलब कि हाई जो वड्डी है, वड्डी वैल्यू आ, है ना, ठीक है, हाई वैल्यू आ, तो साडे कोल की आ? हाइपरबोला, ठीक है। साडे कोल की आ गया? हाइपरबोला। उस तो बाद सर्कल दे लई देखो स्टूडेंट्स,
E इज़ इक्वल टू 0 0 की होंगी साड़ी सर्कल की तरह होंगी है तो असी सर्कल चेते रख सकते हैं आसानी के नाल ये कोई वड्डा मसला नहीं है स्टूडेंट्स तुहाडे ये माइंड दे विच चाहिदियां ने जो 4 गल्लां ने ना आह वालियां ये तुहाडे माइंड दे विच चाहिदियां ने इहदे उत्ते एक क्वेश्चन बन ही जाता हुंदा ठीक है। हुण स्टूडेंट्स गल करते हैं असी सैकेंड ला की। देखो स्टूडेंट्स साडे कोल ये सन पिया ते ये अपने कोल प्लैनेट पिया ठीक है। इत्थों असी इनू मिला दिता पोजीशन वैक्टर OP मान लो ये O पॉइंट ते पिया जो सन पिया साडा O पॉइंट ते पिया ठीक है तो पोजीशन वैक्टर साडा की हो गया OP। स्टूडेंट्स सैकेंड ला की कहंदा देखो साडे कोल सैकेंड ला इनू असी की कहांगे ये साडा OP पोजीशन वैक्टर है इनू लाइन जॉइनिंग दी सन एंड प्लैनेट भी कह सकते हैं ठीक है दोनों के विचों जिहड़ा साडा मन बनदा वो कह सकते हैं ठीक है। स्टूडेंट्स T पॉइंट ते T टाइम ते इत्थे है साडे कोल P पॉइंट ते है DT टाइम लग्या साडे कोल DT टाइम मतलब बहुत थोड़ा टाइम बहुत थोड़े टाइम के बाद की होया ये साडा प्लैनेट इत्थे आ गया इनू असी P डैश पॉइंट ले लेने ठीक है P डैश ते आ गया थोड़े टाइम बाद ते देखो स्टूडेंट्स थोड़े टाइम दे विच डिस्टेंस कितना कवर करूगा DR ठीक है DR उन्हें डिस्टेंस कवर करिया ते पोजीशन वैक्टर असी फिर मिलावांगे इनू मिला दिता ठीक है ये साडा कितना हो जाऊगा ये साडा RC ते ये DR प्लस R ठीक है ये इंक्रीमेंट लग गया हुण इहदे विच एंगल स्टूडेंट्स लगा लो असी थीटा लगा लो ठीक है। साडी वेलोसिटी इधर नूं क्योंकि टेंजेंशियल एक्ट करती है हमेशा जो वेलोसिटी एक्ट करती है ये साडा किहड़ा R वैक्टर स्टूडेंट्स देखो हुण मैं तुहानूं एक बेसिक कंसैप्ट इत्थे यूज़ होगा पहला वो समझाउणा मान लो साडे कोल एक वैक्टर ए वाला ठीक है तो दूजा वैक्टर साडे कोल ए वाला A B C साडे कोल दो वैक्टर ने ठीक है। असी कहने सानू कह दिता भी आह वाला एरिया कड्डो ये अंडर जिन्ना भी एरिया आ रहा दोनों के अंडर नहीं कह सकते भी यार एरिया कड्डो। स्टूडेंट्स देखो असी की करते होंगे जो साडे कोल दो वैक्टर दे दिते होण जे अगर उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए साडे कोल की आजू एरिया आजू हुण ए वैक्टर AB दे अलॉन्ग साडे कोल मान लो P वैक्टर है ठीक है AC दे अलॉन्ग साडे कोल Q वैक्टर है ठीक है असां ने एरिया कड्ढना इहदा एरिया जदों भी असी दो वैक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करते होंगे स्टूडेंट्स जिहड़ी उहदे नाल पैरेललोग्राम बनती है या फिर साडी कोई रेक्टेंगल बनती है तो वह सारे का एरिया आ जाऊगा ठीक है। मान लो असां ने P क्रॉस Q कर दिता P क्रॉस Q करे साडा P क्रॉस Q करे साडा एरिया वैक्टर तुहाडे बने नूं आएगा ठीक है बट एरिया कितना आ जू स्टूडेंट्स वो ये ABCD जो रेक्टेंगल बनी है चाहे पैरेललोग्राम बनी है ABDC इधर सारी का एरिया आजू बट सानू कितना चाहिए सी एरिया ABC इो ट्रायंगल का एरिया चाहिए सी ठीक है। स्टूडेंट्स जे इनू असी हाफ लगा दी ये सामने ठीक है ये सामने हाफ लगा दी क्योंकि डायगनल इनू बाइसैक्ट कर रहे हैं ये एरिए नू हाफ एरिया उधर रह रहा है हाफ एरिया इधर रह रहा ठीक है हाफ लगा दिता तो साडे कोल की आ गया एक ट्रायंगल का एरिया आ गया ठीक है। स्टूडेंट्स देखो जेड़ा साडा आह वाला पोजीशन वैक्टर आ OP सैकेंड ला की गल करते हुण की कहंदा सैकेंड ला ये कहंदा भी जेड़ा OP वैक्टर आ DT टाइम दे विच कुछ एरिया कवर कर लिया उन्हें है ना DT टाइम दे विच मान लो उन्हें DT टाइम दे विच ए एरिया कवर किया ठीक है। उस तो बाद वो प्लैनेट साडा घूमदा घूमदा रिवॉल्व करदा करदा साडा प्लैनेट इत्थे आ गया ठीक है। ये ए पॉइंट में असीं M पॉइंट ले लेने तो यदा भी एक पोजीशन वैक्टर उही हो
dt टाइम बाद ही फिर चैक करिया सी सेम टाइम जेड़ा टाइम इत्थे लिया सी उहियो इत्थे लेना dt टाइम दे विच फिर इहने कुछ ट्रैवल किया है ना, वो की हो जू साडा अपना dr, ठीक है। कोई डिफरेंट भी हो सकती ने वैल्यूज़, ये मतलब पार्टिकुलर नहीं dr डैश भी हो सकती है, ठीक है। dt टाइम सेम लेना बट आपां ने, ठीक है। हुण देखो स्टूडेंट्स आ टाइम दे विच असां ने की करिया dt टाइम लिया, सैकेंड टाइम भी dt टाइम लिया, उन्हें एरिया मान लो कवर करिया a डैश, ठीक है। कैपलर दा सैकेंड ला की कहंदा, अगर साडा पोजीशन वैक्टर है जो OP है, सन ते प्लैनेट नूं मिलाउण वाला पोजीशन वैक्टर आ, dt टाइम असीं सेम लैंदे आ, जिथे मर्जी लै लो, टाइम दा इंटरवल साडा सेम आ, तां जो साडे एरिए कवर होणगे ना A ते A डैश ये इक्वल होणगे, A ते A डैश इक्वल होणगे। इहो साडा अपना न्यू कैपलर्स दा सैकेंड ला कहंदा, ठीक है। जिथों मर्जी एरिया लै लो, असीं इत्थों होर असीं घट भी लै सकदे हां इत्थों, बट टाइम कंडीशन की है, टाइम सेम लेना, असीं सेम इंटरवल ऑफ टाइम लेना, जो एरिया कवर किया जाऊगा साडे प्लैनेट दे द्वारा वो साडा सेम होऊगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स असीं लिखदे हां इत्थे कैपलर्स सैकेंड ला स्टेट्स दैट, की स्टेट्स करदा, एरिया कवर्ड बाय पोजीशन वैक्टर OP, ठीक है। पोजीशन वैक्टर OP लिख सकते हैं असी, लाइन जॉइनिंग दी सन एंड प्लैनेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इत्थे लाइन जॉइनिंग दी सन एंड प्लैनेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। एरिया कवर्ड बाय द पोजीशन वैक्टर OP इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एरिया कवर्ड बाय पोजीशन वैक्टर OP इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ठीक है, हमेशा कॉन्स्टेंट रहता। हुण असीं इहदा करदे हां प्रूफ। देखो स्टूडेंट्स हुण साडा सारा कंसैप्ट है जो आ वाला यूज होऊगा, जो साडी ट्राइंगल OPP डैश, इहनूं बाहर कढदे हां असीं, OPP डैश नूं असीं इत्थे लै आउणे आ, साडे कोल ट्राइंगल OP ते P डैश, ठीक है। ਇਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਸਾਡਾ R ਵੈਕਟਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਸਾਡਾ DR ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ R प्लस DR, ठीक है। स्टूडेंट्स देखो उहियो वाला कंसैप्ट लाउने आ असीं, जदों असीं आ वाले दोनों वैक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करी R ते DR दी, साडे कोल एरिया कितना आऊगा इन्ना, जो साने लाल नाल लगा दिता, ठीक है। साडे कोल सारा एरिया आ जाऊगा, टोटल एरिया मतलब कि जो R क्रॉस DR प्रोडक्ट करिया, ठीक है। बट सानू कितना चाहिए, सानू कल्ली हाफ ट्राइंगल का ही चाहिए, OPP डैश का ही चाहिए, ठीक है। इस करके असीं की करांगे, R क्रॉस DR कट लिया साने, ये अगे असीं हाफ लगा देंगे, ठीक है। चेंज इन एरिया, जे साडे कोल टाइम कितना लिया सी, DT टाइम लिया सी, D फिर एरिया कितना हो, DA एरिया, DA एरिया इज इक्वल टू हाफ R क्रॉस DR वैक्टर, ठीक है। उस तो बाद असीं DT नाल इहनूं इक्वेशन नूं डिवाइड करो, DT इक्वेशन नाल डिवाइड करता, DT इत्थे भी लगा ते DT इत्थे भी लगा, ठीक है। DA वैक्टर डिवाइडेड बाय DT इदां ही रह जाऊगा, DA DT इट इज इक्वल टू हाफ R वैक्टर उदा ही DR बाय DT की हुंदा साडे कोल, वेलोसिटी वैक्टर हुंदा, ठीक है, वेलोसिटी। फिर स्टूडेंट असीं नैक्सट स्टैप च की करदे हां, असीं म्यू नाल इत्थे मल्टीप्लाई, म्यू नाल ही डिवाइड, क्यों, क्योंकि असीं इत्थे की बनाउणा चाहुंदे हां, एंगुलर मोमेंटम बनाउणा चाहुंदे हां। एंगुलर मोमेंटम की हुंदा साडे कोल, R क्रॉस P, R क्रॉस म्यू V, क्योंकि P की वैल्यू P इज इक्वल टू MV हुंदा, ठीक है। असीं इत्थे रिड्यूस्ड मास यूज कर रहे हैं, म्यू V वैक्टर आ गया, ठीक है। P उहियो इत्थे वैल्यूज पुट करियां ने सारियां। हुण देखो स्टूडेंट्स असीं की करदे आ, हाफ म्यू, इत्थे साडे कोल की आ जाऊगा एंगुलर मोमेंटम वैक्टर DA
ਵੈਕਟਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय dt। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਏਰੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਏਰੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਅੰਡਰ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਮੈਂ। ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਊ ਆ ਖੁਦ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆ ਤੇ 2 ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ dA ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ dt ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਏਰੀਆ ਕਵਰਡ ਬਾय ਦੀ ਪਲੈਨਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਆਫ ਸਨ ਐਂਡ ਪਲੈਨਟ in equal interval of time, कोई भी टाइम dt ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਏਰੀਆ ਕਵਰਡ in equal interval of time is constant। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਏਰੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਲਾ ਬੰਨੀ ਨੂੰ। थर्ड ला दे विच एक टाइम पीरियड की गल आऊ, टाइम पीरियड की दूसरी मेजर एक्सिस की गल आऊ। ठीक है, मेजर एक्सिस बारे तुहानूं पता ही है, पहलां दस चुके हैं मैं। टाइम पीरियड की गल करते हैं आपां। टाइम पीरियड दे विच स्टूडेंट्स की हुंदा, मान लो साडा प्लैनेट इत्थे आ ते इहनूं एक राउंड पूरा करन वास्ते जिन्ना टाइम लग्गिया, इहनूं एक राउंड पूरा करन वास्ते जिन्ना टाइम लग्गिया वो साडा की है, टाइम पीरियड आ। ठीक है, हुण अपना न्यूटन कैपलर का थर्ड ला की कहता भी स्केयर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रपोर्शनल टू दी क्यूब ऑफ सैमी मेजर एक्सिस। ठीक है, स्केयर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रपोर्शनल टू दी क्यूब ऑफ सैमी मेजर एक्सिस। टाइम पीरियड बारे भी पता तुहानूं, मेजर एक्सिस बारे भी पता। ठीक है, तो उस तो बाद असीं इहदा प्रूफ करन जा रहे हैं स्टूडेंट्स। इहदे विच असीं प्रूफ करांगे दो। ठीक है, एक अपने लोअर क्लासेस दे लई, एक अपनी हायर क्लासेस दे लई। जो अगर तुसीं +1 दे विच स्टडी कर रहे हो, अगर तुसीं स्टूडेंट +1 दे हो तो तुसां ने पहला वाला प्रूफ ही करना। अदरवाइज अगर तुसीं हायर क्लासेस दे हो, ठीक है, तुसां ने दोनों प्रूफ करने, क्योंकि ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। बट ਤੁਹਾਡੇ MCQ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਲੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਲਿਪਸ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਿਆ, ਸਨ ਪਿਆ। ठीक है, इत्थे साडे कोल प्लैनेट मूव कर रहा है, ये साडे कोल आर आ। ठीक है, हुण जदों सर्कुलर मोशन दे विच किसी भी बॉडी नूं मूव करन वास्ते इत्थे एक फोर्स चाहिदी हुंदी है जो अपनी बॉडी नूं सेंटर बन्नी नूं अट्रैक्ट कर दे सके। ठीक है, वो किहड़ी फोर्स हुंदी है, साडी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जदों सर्कुलर मोशन दे विच बॉडी होवे। ठीक है, हुण स्टूडेंट्स असीं पढ़ चुके हैं भी दो मास होण उन्हां दे विच हमेशा एक ग्रैविटेशनल फोर्स होंदी है। ठीक है, इत्थों ही एक ग्रैविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, ग्रैविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट्स असीं की करना, जिहड़ी सेंट्रीपिटल फोर्स आ वो होर किसी द्वारा नहीं प्रोवाइड करी जानी। किहड़ी फोर्स प्रोवाइड कर रही है, ग्रैविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इस करके असीं की करांगे, इनू इक्वल रखांगे। और कोई फोर्स तो एग्जिस्ट करती नहीं। ठीक है, किसी भी ऑब्जैक्ट नूं सर्कुलर मोशन दे विच एग्जिस्ट कराउण दे लई, नहीं तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स ना लगे फिर तो वो पाथ अपना नहीं फॉलो करूगा, तो पाथ इत्थों इधर सीधा लंघ जाऊगा, इत्थों वेलोसिटी इदां। ठीक है, इत्थों उहने सीधा लंघ जाना जे साडी ग्रैविटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है, तो असीं की लिखांगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रैविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट्स हुण असीं सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रैशन लिख रहे हैं, mv² बाय r, mv² बाय
R is equal to GMM G कैपिटल M बाय R स्केयर नाल R गया ठीक है। हुण असीं G कैपिटल M डिवाइडेड बाय M नाल आ भी गया ना GM बाय R इज इक्वल टू V स्केयर। साडे कोल ये एक्सप्रैशन आ चुकिया ठीक है। उस तो बाद असीं स्टूडेंट्स इत्थे V की वैल्यू कड्ढनी आ, वेलोसिटी की वैल्यू कड्ढनी आ। वेलोसिटी साडे कोल की आ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जिन्ना टाइम लग रहा ठीक है। हुण स्टूडेंट्स देखो ये पाथ किहड़ा है, सर्कुलर पाथ आ ठीक है। जदों अपने कोल एक घेरा पूरा करन दे लई, एक पैरीमीटर पूरा करन दे लई ठीक है, जिन्ना टाइम लगूगा टाइम पीरियड होऊगा ते असीं उपर डिस्टेंस रख देने, साडे कोल की आ जूगी वेलोसिटी आ जूगी ठीक है। डिस्टेंस साडा किन्ना 2 पाई आर डिवाइडेड बाय ठीक है, टाइम पीरियड साडा टी है ठीक है। इस करके असीं इहनूं इत्थे वेलोसिटी की जगह ते पुट कर देंगे। हुण वेलोसिटी की जगह ते असीं पुट करते हैं GM बाय R इट इज़ इक्वल टू 2 पाई बाय 4 पाई स्केयर R स्केयर डिवाइडेड बाय T का स्केयर ठीक है। हरेक सारी क्वांटिटी का स्केयर आ, मतलब ये कल्ले कल्ले का स्केयर कर देंगे असी। फिर असी स्टूडेंट्स की करते हैं T स्केयर नूं असी लैफ्ट साइड पर लै जाने ते R वाला इनू राइट साइड पर लै जाने। T स्केयर GM नूं भी राइट साइड पर लै जाने 4 पाई स्केयर डिवाइडेड बाय GM ते R दा क्यूब ठीक है। स्टूडेंट्स आ जी क्वांटिटी है साडे कोल की है कॉन्सटेंट आ, इंप्लाइज दैट T स्केयर प्रपोर्शनल टू R क्यूब ठीक है। ये साडे कोल उहियो हो गया। R क्यूब नूं R नूं इत्थे की मन के चलदे सी एक्सिस, मतलब कि अपना ये रेडियस आ सैमी मेजर एक्सिस मन के चलते हैं ठीक है। तो साडे कोल ये प्रूफ हो गया भी टाइम पीरियड का स्केयर इज प्रपोर्शनल टू सैमी मेजर एक्सिस या रेडियस कह सकते हैं ठीक है। क्योंकि असी केस नूं सिंपल करिया ठीक है, ये थोड़ा जिहा कंपलीकेटेड हो जाता, इनू सिंपल करके असी सर्कल दे विच ले आया। ये हैगा क्लास अपना +1 के स्टूडेंट्स लई ठीक है। तो जो कंपीटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्होंने दोनों ही करने हैं हुण ठीक है। अगला देखते हैं, अगला भी प्रूफ देखते हैं हायर क्लासेस वाला। स्टूडेंट्स देखो एरिया ऑफ एलिप्स की गल करी सी आपां ने, टाइम पीरियड कढ़ते हैं असीं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू एरिया ऑफ एलिप्स डिवाइडेड बाय एरियल वेलोसिटी ठीक है। ये साडे कोल टाइम पीरियड का एक्सप्रैशन आ गया। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। T इज इक्वल टू एरिया ऑफ एलिप्स कितना ਹੁੰਦਾ स्टूडेंट्स पाई AB ठीक है। इसे करके मैं बेसिक कंसैप्ट कराਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਲਝਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। एरियल वेलोसिटी की है DA डिवाइडेड बाय DT इट इज इक्वल टू पाई AB DA डिवाइडेड बाय DT साडा कितना आया सी अपना L/2 म्यू इट इज इक्वल टू 2 म्यू पाई AB डिवाइडेड बाय L ठीक है। ये साडे कोल की आ गया टाइम पीरियड आ गया, इट इज इक्वल टू टाइम पीरियड। हुण साडा नैक्सट जो काम हैगा B की वैल्यू कढ़ना ठीक है। स्टूडेंट्स असी पढ़ चुके हैं लेटस रैक्टम बारे, लेटस रैक्टम ठीक है कादा एलिप्स का B स्केयर बाय A। एक होर इहदा एक्सप्रैशन हुंदा अपना L इज इक्वल टू L स्केयर बाय म्यू के ठीक है। दोनों को असीं कंपेयर कर देंगे B स्केयर बाय A इट इज इक्वल टू L स्केयर बाय म्यू के इंप्लाइज दैट A नूं असीं राइट साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्केयर रूट कर देंगे B इज इक्वल टू L स्केयर A बाय म्यू के L स्केयर A बाय म्यू के इहदा स्केयर रूट ठीक है। ये साडे कोल आ गई B की वैल्यू। फिर स्टूडेंट्स असीं की करते हैं असीं ये B की वैल्यू असां ने इत्थे टाइम पीरियड दे विच पुट करनी है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 म्यू पाई A ठीक है। B कितना साडा A वाला, इनू B की वैल्यू पुट करते हैं, हेठां L भी लगा लेने तो B की वैल्यू इत्थे पुट करो L स्केयर बाय A डिवाइडेड बाय म्यू के इंप्लाइज दैट स्टूडेंट्स असी हुण की करना, असी इनू स्केयर रूट खत्म करना ठीक है, इनू सिंपलीफाई करना। असी की करांगे स्केयरिंग कर देंगे दोनों साइड। T स्केयर इज इक्वल टू 4 इत्थे म्यू आ म्यू का स्केयर पाई का स्केयर ते A का स्केयर डिवाइडेड बाय L का स्केयर ठीक है। ਇਹਦਾ स्केयर रूट खत्म हो जाऊगा तो अपने कोल की रह जाना L स्केयर A डिवाइडेड बाय
म्यू के। ठीक है, एल स्केयर नाल एल स्केयर कैंसल हो गया साडा, होर तां नहीं कुछ कैंसल हुंदा हैगा, आ म्यू कैंसल हुंदा अपना, म्यू दे नाल स्केयर कैंसल हो गया। ठीक है, फिर साडे कोल की है स्टूडेंट्स, टी स्केयर इज़ इक्वल टू 4 म्यू पाई स्केयर। ठीक है, उस तो बाद के इंटू ए दा क्यूब। आ जो क्वांटिटी है साडी कॉन्सटेंट है, कॉन्सटेंट की जगह असी प्रपोर्शनैलिटी लगावांगे, टी स्केयर प्रपोर्शनल टू ए दा क्यूब। ये की है साडा, इहो साडा कैपलर दा थर्ड ला। ठीक है, जो टाइम पीरियड दा स्केयर है इज प्रपोर्शनल टू दी सेमी मेजर एक्सिस ऑफ दी एलिप्स। ये हैगा दी साडा हायर क्लासेस दे लिए। ठीक है, हायर क्लासेस जो कंपीटीशन एग्जाम वाले आ उन्होंने दोनों प्रूफ करने, दोनों चीज़ां माइंड दे विच रखणियां। ठीक है, तो हुण असीं करन जा रहे हैं अपने कुछ इहदे रिलेटेड MCQ। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण असीं करन जा रहे हैं कुछ साडे MCQ। ठीक है, जो टॉपिक असीं पहलां करे उहदे रिलेटेड है। देखो, शेप एंड साइज ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज़ डिटरमाइंड बाय। शेप एंड साइज कितों डिटरमाइंड करिया जांदा, भी इहो लिखना साडी एनर्जी ऑफ द प्लैनेट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट ओनली लगा। ठीक है, बोथ एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, नाइदर एनर्जी नॉर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये साडे कोल ऑप्शनस है। स्टूडेंट असी की पढ़िया सी, असी पढ़िया सी एसेंट्रीसिटी। एसेंट्रीसिटी तो ही शेप का सानू पता लग जाता भी साडी पैराबोला या हाइपरबोला या साडी एलिप्स है या फिर कोई सर्कल है। ठीक है, वो तो ही पता लग जू। असी की कढ़ांगे एसेंट्रीसिटी 1 इज इक्वल टू 1 + 2e एल स्केयर अपॉन म्यू के स्केयर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इत्थे दो एनर्जियां आ रही ने अपने को, दो टर्म्स आ रही ने, एनर्जी तो नहीं कह सकते आप एनर्जियां, दो टर्म्स आ रही ने साडे कोल। एक साडे कोल ई आ रही है मतलब कि एनर्जी, दूजी साडे कोल की आ रही है एंगुलर मोमेंटम। मतलब कि दोनों ही अपने ई नू निर्धारित करन दे विच हैल्प करदे। ठीक है, दोनों ते डिपेंड करती है साडी ई। जे साडी ई दोनों ते डिपेंड करती है, इहदा मतलब की है जो साडी शेप है ना अपने जिहदे विच अपना ऑर्बिट दे विच मूव कर रही है, उसकी शेप है जो, ठीक है, वो साडे बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम ने जो, ठीक है, ड्राइव करनगे, डिटरमाइन करनगे अपने एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, कि जो प्लैनेट है जो वो किस तरह की शेप दे विच मूव करूगा। ठीक है, असीं हुण नैक्सट करते हैं, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट इज़ नैगेटिव, टोटल एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट इज़ नैगेटिव बट नॉट द मिनिमम इट्स पाथ इज़। देखो स्टूडेंट्स, असी की करिया सी, असी करिया सी जिहड़ी आ वाली है एनर्जी है, इत्थे देखो इहो एक्सप्रैशन दे विच नैगेटिव आ गई। ठीक है, बट नॉट मिनिमम। नैगेटिव जो टर्म आ गई इत्थों वो -1 दे विचों माइनस होगी, 1 दे विचों माइनस होने तो बाद सारा एक्सप्रैशन की आ जाऊगा साडे कोल <<1। ठीक है, जो E इज़ इक्वल टू इत्थे 0.5 0.7 कुछ भी हो सकता। ठीक है, E जो << साडी की आ गई 1 आ गई। असां ने की करिया सी, जो E <<1 होवे, E <<1 मतलब कि, ठीक है, लैस तो असीं की ड्राइव करते हैं एलिप्स। ठीक है, जो साडा पाथ होगा वो एलिप्स होगा, इसका मतलब की है साडा एलिप्टिकल पाथ है। ये विच बहुत डिटरमाइन करदियां ने एनर्जी ते मोमेंटम। उस तो बाद अगे चलते हैं असी 3rd MCQ ते, ये बॉडी अंडर दी एक्शन ऑफ इनवर्स स्केयर फोर्स, वही अपना जो केस इत्थे ड्रा कराया थी, विल फॉलो एलिप्टिकल पाथ फॉलो कर रही है। इफ सेंट्रीसिटी, ਜਦੋਂ बॉडी एलिप्टिकल पाथ फॉलो कर रही होंदी आ ਤਾਂ ਉਹਦੀ सेंट्रीसिटी कितनी होंदी आ, ਉਹੀ जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ है ना 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ देखो किन्ने क्वेश्चन बन चुके हैं ना। देखो ਉਹਦੀ सेंट्रीसिटी होगी साडी <<1 एलिप्स ਦੇ ਲਈ, क्योंकि एलिप्स है इत्थे देखो कितने लिखे अपने को एलिप्टिकल पाथ। ठीक है, एलिप्स मतलब कि एलिप्स के लिए लैस मतलब कि E <<1। ठीक है, उस तो बाद अगे चलते हैं, इफ द सेंट्रीसिटी ऑफ अ ट्राइजैक्टरी इज़ 0, वो ट्राइजैक्टरी वो पाथ की सेंट्रीसिटी 0 आ तो ट्राइजैक्टरी इज़ की होएगी, सर्कल होएगी। कंसैप्चुअल क्वेश्चन ने स्टूडेंट्स, ये कोई इन्ना समझाने वाला है नहीं। ठीक है, क्योंकि तुहानूं मैं सारा कंसैप्ट पहला दस चुकिया कि इहदे लई किद्दां हुंदा विद ट्रिक, है ना, तो तुसीं आसानी दे नाल कर सकते हो ये क्वेश्चन ते जो भी, है ना। तो इहदी जो 4th वाले का ऑप्शन आऊगा वह सर्कल आऊगा, क्योंकि सेंट्रीसिटी इत्थे कितना मैंसन करी है इन्होंने, 0 मैंसन करी है। ठीक है, स्टूडेंट्स हुण देखते हैं असी, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ MCQ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ बॉडी
under the action of the inverse square force will move along circular path ਦੇ along move कर रही है if its total energy कितनी होगी ਜਦੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰੂਗੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ E is equal to 1 plus 2E L square by mu k square ठीक है। तुसां ने ये एक्सप्रैशन तो कई क्वेश्चन बनते हैं ये तुसां ने अपने दिमाग दे विच बिठा लेना ठीक है। जो एनर्जी जो इक्वल होगी मिनिमम पोटैंशियल एनर्जी दे तां साडा की होना जो ठीक है अपनी एसेंट्रिसिटी अपनी जीरो आ जानी है तो अपनी मिनिमम पोटैंशियल एनर्जी दे कारण वन जो कैंसल हो जाना एसेंट्रिसिटी जीरो आ जाएगी इस करके अपना जो पाथ होएगा वो अपना सर्कुलर पाथ होएगा। ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ इनवर्स स्क्वायर फोर्स विल मूव अलॉन्ग पैराबोलिक पाथ इफ टोटल एनर्जीज पैराबोलिक पाथ के अलॉन्ग मूव कर रही है ठीक है। टोटल एनर्जी इज देखो हुण ई मतलब कि अपने वन तो ग्रेटर करनी है ई पैराबोला सॉरी पैराबोला ई कितनी होंदी है साडे कोल E इज़ इक्वल टू 0 होंदी है सॉरी 1 होंदी है ठीक है पैराबोला लई। हुण देखो स्टूडेंट्स इत्थों असीं E नूं 1 एसेंट्रिसिटी नूं 1 किदां कर सकते हैं जे साडे कोल आह वाला एक्सप्रैशन 0 आ जांदा तां साडी एसेंट्रिसिटी है 1 हो जाऊगी इस करके एनर्जी सानूं की करनी पैनी है 0 करनी पैनी है फिर इत्थे 1 आ जाएगा 1 दा अंडर रूट 1 आ जाएगा इस करके साडा पैराबोलिक पाथ है जो फॉलो हो जाएगा। इस करके इहदा आंसर की है साडे कोल 0 करनी पैनी है एनर्जी सानूं। When total energy of a body moving under the inverse square force is positive एनर्जी है जो पॉजिटिव आ इट विल की करूगी एनर्जी यदि पॉजिटिव आ गई ठीक है इतने एनर्जी पॉजिटिव आ 1 दे विच कुछ पॉजिटिव प्लस हो रहा ठीक है इस करके E साडा की आएगा 1 तो वड्डा आएगा E इज़ ग्रेटर दैन 1 ठीक है E साडा 1 तो वड्डा आएगा। हुण देखो स्टूडेंट्स फस्ट ऑप्शन की गल करते हैं मूव फ्रॉम इनफिनिटी टू आर एंड दैन गो बैक इनफिनिटी तो साडे कोल बॉडी आ रही है तो फिर वापस चली जाती है ये किहड़ा पाथ हुंदा स्टूडेंट्स हाइपरबोला का पाथ हुंदा हाइपरबोला देखो आ वाला ठीक है साडी आ वाली जो लाइन जा रही है इनफिनिटी तो बॉडी आई साडे आर डिस्टेंस को आई ठीक है फिर ये बैक चली गई ये साडा हाइपरबोला का पाथ होया। उस अगला देखो मूव बिटवीन द फिक्सड डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स दे तो फिक्सड डिस्टेंसेस ते मूव कर रही है साडे कोल एलिप्स है ठीक है तो मैक्सीमम डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ फोर्स इत्थों P पॉइंट आ ठीक है तो यदा मैक्सीमम डिस्टेंस होगा कुछ तो एक मिनीमम डिस्टेंस होगा इन्हां दो फिक्सड डिस्टेंसेस दे विच बॉडी मूव कर रही है। इसका मतलब की है जो फिक्सड डिस्टेंसेस दे विच बॉडी मूव कर रही है तो वो बॉडी है जो एलिप्स दे विच मूव कर रही है ठीक है। थर्ड देखते हैं मूव एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट डिस्टेंस से मूव कर रही है ये किदां दी फिगर हो सकती है सेंटर ऑफ फोर्स तो सर्कुलर मोशन दे विच ठीक है आ साडी सेंटर ऑफ फोर्स है इत्थे कोई प्लैनेट मूव कर रहा जिहदा डिस्टेंस है जो इहदे अराउंड फिक्स रहिंदा ये साडा की हो गया सर्कुलर पाथ हो गया। देखो स्टूडेंट्स E हुण किहड़े पाथ लई इहदे विच एप्लीकेबल आ E साडी ग्रेटर दैन 1 होगी ठीक है। इत्थे देखो मैं टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी मूविंग अंडर पॉजिटिव आ एनर्जी पॉजिटिव है इत्थों रिजल्ट की निकले साडा E ग्रेटर दैन 1 होगी E ग्रेटर दैन 1 अपने हाइपरबोला लई हुंदी है या एलिप्स लई हुंदी है या अपनी सर्कुलर मोशन दे लई हुंदी है क्योंकि तीनों ऑप्शनां ने आह वालियां ठीक है हाइपरबोला एलिप्स ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਐਲਿਪਸ ਜੋ E ਐਕਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ऑप्शन हाइपरबोला आऊगा हाइपरबोला किहदे तो बनिया साडा मूव्स फ्रॉम इनफिनिटी टू आर एंड दैन गो बैक इनफिनिटी तो बॉडी आर डिस्टेंसेस ते आउंदी है फिर वापस चली जाती है वो साडा हाइपरबोला हुंदा स्टूडेंट्स ठीक है। इस करके इहदा ऑप्शन आएगी आंसर ए आंसर। देखो हुण अगला देखो कैपलर सैकेंड ला इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ सैकेंड ला की कहंदा सी अपना किहदा रिजल्ट है किहदे तो ऑबटेन किया गया मतलब कि जे वो चीज़ ना होंदी फिर असीं कैपलर ला ऑबटेन नहीं कर सकते थे सैकेंड ला गलत हो जाता ठीक है। देखो स्टूडेंट्स असीं पढ़िया सी DA / DT इज़ इक्वल टू L वैक्टर बाय 2 μ ठीक है।
ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੈਪਲਰ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਸੀ ਏਰੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਾਲਾ। ਏਰੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਾਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਆ? ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੇ। ਜੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੇਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਏਰੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਆ ਜੋ ਕੈਪਲਰ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਰਥ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਰਥ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਅਰਥ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਨॉन ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ, ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ, फोर्थ वाला सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स स्टूडेंट्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। सेंट्रीपिटल फोर्स ਸਾਡੇ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ? ਅਰਥ ਮੋਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨੇ ਅਰਥ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨॉन ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨॉन ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਤੇ ਨॉन ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਂਸਸ ਇਹ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਮਾਸਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਟਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਆ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਮਾਸ ਲੈ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਮਾਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ G/m/r², ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਦੋਂ ਟੂ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ? ਅਰਥ ਆ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਐਕਟ ਕਰੂਗੀ? ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਕਟ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਆ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।